students, myself Ankur Badwar, and this is part 2 of third week of April current affairs for RBI grade B, SEBI grade A, NABARD grade A, as well as all other banking and insurance exam, and it covers phase 1 and phase 2 both. That means it covers the current affairs of ESI as well as the finance of RBI grade B. Okay, so let's go ahead. This is part 2. If you haven't gone through the part 1, please go through it. It is there in the description in the of this video. Also the PDF is available in the Telegram channel, which is you must join if you want that PDF. So let's go ahead with the part 2 of third week of April. For first and second week there are 5 videos of first and second weeks, and there is a separate playlist also. Go through that playlist, all the videos are there. Okay, and these will be very helpful for you for your phase 1 as well as phase 2 in the upcoming exams, especially of the regulatory bodies like RBI, SEBI and NABARD. Also it covers all the current affairs of SBI, PO, IBP, SPO, LIC, AO, and all the banking insurance exam which will be there. So let's start. Rupee declines 43 paise to a all-time low of 76.87. Now just 1-2 months before today, the rupee was around 70. It was hovering about between 68 to 70. Now suddenly $1 is equal to 76.87, which is a big cause of concern, not only for our government but for the RBI as well. And basically what is happening that the investor confidence in India is going down, and by the investor I'm talking about the foreign investors. As you are aware, the foreign investor bringing in FPI, which is foreign portfolio investment, which can be routed through FIIs, the foreign institutional investors, or QFI. Now due to this COVID-19, these foreign investors are parking their capital in safe havens. Basically they are parking most of their money in USA Treasury bonds, as they consider them to be much safer than the Indian stock and the bond market. Now why the rupee is going weak, the question arises. See, जिस चीज की कमी होती है उस चीज का वो चीज स्ट्रोंग हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर अनियन की कमी है मार्केट में, उसका प्राइस इंक्रीज होगा. ओके, दैट प्राइस विल स्ट्रेंथन. पोटैटो की कमी है मार्केट में तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो उसका प्राइस स्ट्रेंथन होगा. ओके, अब हम जब एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं, इफ़ डॉलर्स आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया टू यूएसए, तो इंडिया की जो मार्केट है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसमें डॉलर्स की शॉर्टेज हो गई. अब जैसी डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी, डॉलर विल बिकम स्ट्रॉन्ग. अब डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा शॉर्टेज की वजह से, तो रुपी क्या होगा? Rupee will become weak, and that is exactly what is happening. The dollar is becoming strong and the rupee is becoming weaker and weaker. Just see 68.70 से now it has gone to somewhere around 76.87, and it is all time low. कभी भी रूपी इतना गिरा नहीं है जब से इंडिया इंडिपेंडेंस गेन किया इंडिया ने 1947 में. कभी भी रूपी इतना वीक नहीं हुआ है जो अब सिचुएशन आ गई है कोविड-19 की वजह से. नाउ अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? दी आरबीआई इज डूइंग, आई विल रिपीट इन इंग्लिश नाउ, व्हाट टू बी डन. आरबीआई इज हैव ऑलरेडी intervened. You know there are 3 types of float. One is free float, if I talk about the foreign exchange market. Second is the fixed float, and third one is the managed float. Now India officially have adopted a free floating system of the foreign exchange. That is, there is a full current account convertibility. Earlier it used to be fixed float. Now, but every country of the world is somewhere doing managed floating. It means the central bank of that country is intervening when necessary.
Now, Indian Central Bank, that is Reserve Bank of India, has intervened just, I would say, 2 weeks before, 1 or 2 weeks before, they have intervened. And what they have done to arrest वीकनिंग ऑफ रुपी, कि रुपी और ज़्यादा कमज़ोर ना हो, तो उन्होंने क्या किया है कि डॉलर्स को, इंडिया फॉरेन मार्केट के अंदर डॉलर्स को पंप कर रहे हैं. दे आर पंपिंग, means the RBI of India is pumping dollars into foreign exchange market. अब the question arises, सर ये कैसे डॉलर को पंपिंग कर रहा है, हाउ दे आर पंपिंग इन दी डॉलर्स. ओके, नाउ what the RBI of India is doing, that RBI is using the India's foreign exchange. अब अगर आप मार्च 27 का न्यूज़ अगर गूगल पर सर्च करोगे, यू विल सी हमारे जो फोन एक्सचेंज थे समवेयर अराउंड 484 बिलियन डॉलर्स थे. इन मार्च 27 इट डिक्रीज टू 470 बिलियन, somewhere around approximately. So you see a fall of around 12 to 14 billion dollar in just a week, and it was the biggest fall in India's foreign exchange since independence in a week. Sorry, not since independence, since 2008, because in 2008 also the RBI intervened and did similar thing, but it was the biggest fall since 2008 financial crisis. Now हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली, दैट आरबीआई इस फॉरेन एक्सचेंज में से, जिसके ज़्यादातर जो है फॉरेन एक्सचेंज हमारा डॉलर्स के टर्म्स में है, उस डॉलर्स को यहाँ से निकाल के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पुट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डॉलर की शॉर्टेज हो गई है बहुत ज़्यादा, वो ना हो. अब जब डॉलर की शॉर्टेज कम होने लगेगी, दैट मीन्स डॉलर्स मार्केट में आने लग जाएंगे, चाहे वो आरबी पंप कर रहा हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो. तो जब शॉर्टेज नहीं रहेगी डॉलर की, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा तो हमारा रुपी वीक नहीं होगा, और उससे जो ये जो रुपी वीक होता जा रहा है डे बाय डे, वो the arrest will be controlled, the downfall of rupee can be controlled. That is what RBI is currently doing to arrest the shortfall of Indian rupee. हाँ, now you will say सर उससे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग डाउन. हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतनी मेहनत से हमने अराउंड 470 के आसपास हो गया बिलियन डॉलर्स, इट इज़ गोइंग डाउन. नाउ आरबीआई ने स्टेटमेंट दी थी, आरबीआई गवर्नर शशिकांता दास हैज़ गिवन द स्टेटमेंट that we are in a comfortable position. We are in a comfortable position as regard to import cover. I told this in great detail in the offline classes. I hope you know what is a import cover. मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड नहीं की है. इम्पोर्ट कवर इज़ दैट कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, सपोज करो कि हमारे में फॉरेन इनफ्लो जीरो हो जाता है कंट्री के अंदर, फॉरेन इनफ्लो इज़ जीरो, किसी भी वजह से फॉरेन इन्फ्लो जीरो. फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना का वार हो गया, एकदम ट्रेड ख़त्म हो गया, फॉरेन इन्फ्लो जीरो हो गया जो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आता है. नाउ व्हाट विल डू, ये जो 48 अभी 70 के आसपास फॉरेन एक्सचेंज है, दैट विल बी सफिशिएंट टू मीट 11 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट कवर. दैट मीन जो अभी हमारा इम्पोर्ट की वैल्यू हम देते हैं, जो भी हम इम्पोर्ट हमारे इंडिया में होता है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, तो 11 महीने तक हम उसको सस्टेन कर पाएंगे, हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज है. सो दैट व्हाट आरबीआई गवर्नर सेड, दैट वी हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वी नीड नॉट वरी, वी हैव मोर देन 11 मंथ्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, 11 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट कवर, दैट इज सफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ 11 मंथ्स. सो वी नीड नॉट वरी. अभी दी प्रायोरिटी इज टू अरेस्ट द डाउनफॉल ऑफ रुपी, और उससे थोड़ा बहुत अगर हमारा फोन एक्सचेंज कम भी होता है, देन दैट इज एक्सेप्टेबल. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. इम्पोर्ट कवर क्या होता है? सो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इस पे, व्हाट इज द करंट रुपी, जो $1 कितने रुपी के है. अगर मान लो अगले महीने एग्ज़ाम होता तो ये आ सकता था, बट वी डोंट नो कि आरबीआई के टाइम पे या सेबी के टाइम पे ये क्या होगा, सो वी कैन नॉट से.
अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, why the rupee is becoming, why the rupee is becoming weak, and one of the reason can be the outflow of foreign portfolio investment or the investment by the foreign investors in US treasury bonds. That can be one of the option, and if you know the concept well, you will be able to answer that question. I hope you are clear. And what can be a question can come from managed float, since it is managed float what RBI is doing currently. So a question can come from that also, since it is in news and they can make a static question out of it. अब ये ध्यान रखना, स्टैटिक कंसेप्ट में भी वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं, उसमें से ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आपने मैंने एनालिसिस, यू मस्ट हैव सीन माय एनालिसिस, उसमें मैंने क्लियरली बताया था दैट दे आर, अब आरबीआई गेट बी की मैं बात करूँ, आउट ऑफ 80 क्वेश्चन देर आर अराउंड 13 to 50 क्वेश्चन दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स. So that's what I mean by that. Okay, please see the strategy videos, they will be very very important for you in order to crack that. Very very important. Okay. और इससे जो मिस गाइडेंस है, जो आपका टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा करंट अफेयर्स पे, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, दैट विल हेल्प यू अलॉट इन दैट. So I hope it is clear. Let's go to next current affairs. Let's go to next current affairs. Yeah, one more thing. A question from import cover can also come. A direct question can be, what is the current import cover of India? Question can be more than 11 months, more than 5 months, more than 2 years, more than 5 years. So you have to answer more than 11 months. Second question can be, what is a import cover? What is a import cover? I already told you. I hope you will be able to answer this kind of MCQs, whether it comes in ESI phase 2 or finance phase 2, or it can come in your phase 1 also of RP grade B and SEBI grade A as well as NABARD grade A. Okay, so let's go ahead to the next current affairs. India's current account may turn surplus. I hope you know that India is currently under current account deficit. We did in budget also. In budget, currently, last year the current account deficit was around 1.9% of our GDP. Tell me the exact CAD value. We have covered in that the budget section. You must know that it can come in your exam. Now, let's see the current affairs. What is this? State Bank of India has forecasted the economy to grow by meager 1%. So, bad news for the Indian economy already. If you have seen my first video, first part of the third week, IMF ने भी अपनी प्रोजेक्शन लेके आ चुका है. IMF ने बोला our economy will grow by around 1.9%. वर्ल्ड बैंक भी अपनी प्रोडिक्शन लेके आ चुका है एंड दे हैव सेड दैट समवेयर अराउंड 1.5 to 2.8%. सो ये जो इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं उन्होंने क्या प्रोजेक्शन किया है इंडिया के लिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. अब एक चीज़ याद, दैट इज़ इम्पोर्टेंट just to say. So I hope that condition becomes stable, this virus goes away fast. Let's go ahead now. Current account deficit, I hope you are aware what it all consists of. I made a big chart जिसमें मैंने बताया था कि जो जब हम डेफिसिट्स की बात करते हैं या फिर हम इसकी बात करें कि करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड देन रेमिटेंसेस. ओके, जिसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी बोलते हैं. फिर इस ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंदर आपके डोनेशंस, गिफ्ट्स, ओके, ऑल दोज थिंग्स यूज टू कम. Remittances used to be under this transfer payments only. So I hope you are aware what all comes on the current account of India. That is very very important. Direct question can come from that. That question can be like, which one of the following is a part of current account of India? Direct question. Now you will say sir ये तो static question है. I will say static question भी तभी आया जब ये current affairs के न्यूज़ में है. एनीवेज करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमेशा न्यूज़ में रहेगा ही रहेगा. सो उसके ऊपर जो स्टैटिक क्वेश्चन भी बनता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर ESI क्वेश्चन.
So let's see what else is the news now that the that person who has done the forecast is saying we can have a current account surplus of 0.7%. Now that will be around 0.9 billion this fiscal. You know the Indian जो GDP है वो around it is around $3 trillion. उसका जो 0.7% होगा दैट विल बी अराउंड 19 बिलियन. ओके, नाउ अब ये हो क्यों रहा है? आई होप यू आर रीडिंग दी न्यूज़ पेपर्स वेल. हो इसलिए रहा है क्योंकि जो डॉलर जो हमारा इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट में अराउंड 25% to 30% जो इन वैल्यू टर्म्स कंसिस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं, एज यू नो कि 80% ऑफ क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं इंडिया की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. तो 25 to 30% जो हम इंपोर्ट करें दैट हैज़ बिकम वेरी चीप. you know it has gone less than $30, which is a very low amount. It used to be around 60 to 70 just couple of months before this COVID-19 crisis. Now it is less than 30. अब उसकी वजह से जो इम्पोर्ट बिल है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है. अब करंट अकाउंट डेफिसिट में एक मेजर कंपोनेंट इम्पोर्ट का होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का होता है. मैं फिर से आपको बताता हूँ इसको. जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है मैं उसमें बता देता हूँ. जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है just wait just wait नाउ जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसका एक मेजर कंपोनेंट है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. आई होप ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता होंगे. अगर नहीं पता देन इट इज़ वेरी सैड, क्योंकि ये अभी तक आपको पता होनी चाहिए क्योंकि RBI इज़ जस्ट फ्यू मंथ्स अवे एंड हमने डिटेल में ये ऑफलाइन क्लासेस में किया. ना अब हो क्या रहा है, जो इम्पोर्ट की वैल्यू है वो कम हो रही है. जब इम्पोर्ट की वैल्यू कम होएगी तो BOT हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होना चालू हो जाएगा. इंप्रूव होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंप्रूव होने लग जाएगा और हो सकता है कम होते होते वो जीरो को सरपास करके सरप्लस में पहुंच जाए. बेसिकली वी आर इन करंट अकाउंट सरप्लस. So that what RBI or SBI in his reports have said. Let's see what remains. It will come in current affairs only and we will cover in detail whenever the official figures of CAD will come by the Finance Ministry of India. Let's go ahead to the next current affairs. IMF forecast 7.6% expansion in Asian economic growth in 2021. Now सी इट इज़ 2021. अभी जो 2020 है उसमें एक्सेप्ट इंडिया एंड चाइना, इंडिया का उसने फोरकास्ट किया 1.9% कुछ ग्रो करेगा, चाइना का भी कुछ 1% के आसपास फोरकास्ट किया. उसके अलावा ऑल द कंट्रीज विल बी इन नेगेटिव ड्यू टू COVID-19. नाउ दिस इज 2020 and in 2021 IMF has predicted that in Asian economies there will be expansion of 7.6%. So IMF is quite optimistic for the next year and it is expecting जो COVID-19 का क्राइसिस है वो जल्दी कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा और अगला साल हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा. इंडिया के लिए भी उसने काफ़ी अच्छी फोरकास्ट किया. तो अब फाइनेंशियल ईयर जो ये 2021 बता रहा है ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर की बात कर रहा है. पर इंडिया का फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जनवरी. इंडिया का फाइनेंशियल ईयर इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. आई होप यू नो इट. ओके, so let's go to next current affairs. Yes, this can come, this forecast can come. Okay, so you should memorize this fact since it is given by IMF. कोई क्रेडिट एजेंसी होती छोटी मोटी, क्योंकि क्रेडिट एजेंसीज काफ़ी है और रिपोर्ट्स बहुत आती है उन सब के लिए, बट IMF वर्ल्ड बैंक की जो मेजर एजेंसीज है ये कोई फोकस करती है. हालांकि इंडिया की फोकस नहीं है, एशियन की है, पर स्टिल कैन कम सेबी ग्रेड ए. और सेबी ग्रेड ए पहले 4 जुलाई को था बट आई थिंक इट
मे बी इट्स लाइकली गोइंग टू बी एक्सटेंडेड सिंस उसकी जो पेपर मीन्स जो पेपर फॉर्म बनने की डेट है वो 1 महीने के आसपास एक्सटेंड हो गई है, जस्ट 2 days बिफोर. So let's go to next current affairs. RBI offers 1 lakh crore balm to ease COVID pain. Now it is second set of emergency measures. Emergency measure पहले भी इससे पहले फर्स्ट सेट आया था जिसमें 50,000 करोड़ उन्होंने पंप किए थे. Now it is second set of measure. सेकेंड अटेंशन ऑफ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. इसकी फुल फॉर्म कभी भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में. 50,000 करोड़ वो एनबीएफसी में पंप करेंगे और 50,000 करोड़ रुपीस वो एनएचपी, सिडबी और नाबार्ड कंबाइन करके देंगे. That will be they will be giving 25,000 crore to NABARD, 15,000 crore to SIDBI and 10,000 crore to NHP. That is they are going to give. So all these things are important कि टोटल कितना पंप किया. 1 लाख करोड़ इन द सेकेंड सेट में, 50,000 करोड़ LTRO किया, 50,000 करोड़ उन्होंने इन तीनों को दिया जिसमें से 25,000 करोड़ उन्होंने नाबार्ड को दिया और 15,000 करोड़ सिडबी को दिया और 10,000 करोड़ उस पर दिया. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे हैव डन. दे हैव डिक्रीज द रिवर्स रेपो रेट RRR by 25 basis point. Now it is to 3.75%. So if the question comes, what is the current repo rate, reverse repo rate of India? It is 3.75%. बशर्ते अगर सेबी का जब भी एग्ज़ाम होता है, जुलाई में होता है या मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग ये शायद सितंबर तक ही होगा, सितंबर में होता है जब वो, तो जब तक हो सकता है रेपो रिवर्स रेपो रेट और चेंज हो सकता है ना हो. अगर नहीं चेंज हो तो ये कभी भी पूछा जा सकता है आपके दोनों एग्जाम में, आरबीआई से भी और एसबीआई. बीच बीच में कोई भी एग्जाम आता है, एसबीआई, आईबीपीएस, कोई भी, सब में ये कभी भी पूछा जा सकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 वैल्यू 5 वैल्यू दे देंगे, फिगर दे देंगे, आपको बताना है क्या है. 3.75%, उसमें से एक हो जाएगा 4%, एक होगा 4.25. इस तरह से 5 ऑप्शन बने रहेंगे. What else they have done? They have decreased the liquidity coverage ratio to 80% from 100% for I think 1 year. For 1 year. Now अब ये liquidity coverage ratio is another ratio that banks have to maintain apart from CRR and SLR. That is cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. इसके अलावा LCR भी मेंटेन करना पड़ता है, 100% करना पड़ता है. तो जो कि अब उसको 80% कर दिया फॉर 1 ईयर. बट आइडली दिस शुड हैव बीन रिमूव क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. अभी कई कंट्रीज में LCR होता भी नहीं है. ऑलरेडी वी हैव CRR एंड SLR, सो देयर वाज स्कोप टू रिड्यूस इट फर्दर, बट आरबीआई डिसाइडेड टू रिड्यूस टू 80%. से होता क्या है, स्टेबिलिटी भी, दे हैव टू सी स्टेबिलिटी आल्सो. अभी CRR को आपको पता होगा, इफ़ यू नो CRR हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3%. SLR भी अराउंड 18% है, आई थिंक 18% ही है. सो करंटली ये 21 के आसपास होता था, ये 4 से 3 हो गया. और भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबको हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, MSF. सो लाइक देयर नीड टू बी सम स्टेबिलिटी आल्सो एंड दैट्स वाई पूरा नहीं हटाया. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स. ऑल दिस थिंग 50,000 इसमें, ये सब इसमें भी मेंशन है. 25 बेसिस या वे मीन्स लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 60% फॉर द स्टेट्स. दैट कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जामिनेशन. Resolution deadline, no, this is not important and that we have already discussed. Now ये कभी भी आ जाते हैं, जब भी कोई चीज़ न्यूज़ में होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स जरूर पूछता है. आरबीआई 4 से 5 क्वेश्चन हर साल हेडक्वार्टर्स में से पूछ रहा है फेज़ 1 के अंदर, और फेज़ 2 में भी पूछ लेता है ESI के अंदर. सो NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली. NHB नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स मुंबई में. और सिडबी, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आई होप, इज इन लखनऊ यूपी. ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है. ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि MSME बहुत ज़्यादा फोकस में है और ये कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं है. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन सेबी ग्रेड A एज वेल एज RBI ग्रेड B. क्वेश्चन कैन बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ सिडबी इज एट लखनऊ, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा. उसमें से आपको मार्क करना है लखनऊ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स.
टॉक्स हेल्ड ऑन सेपरेट कोविड बजट। आपको पता होगा फर्स्ट वीक में हमने कवर किया था, इंडिया हैज़ अनाउंस 1.7 लाख करोड़ का फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैकेज अनाउंस किया है। देखो दो तरह की चीज़ें होती है, इंटरवेंशंस होते हैं। एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी और एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी आपका सेंट्रल बैंक, इंडिया के केस में जो सेंट्रल बैंक है वो है आपका आरबीआई जो फॉर्मुलेट करता है। ओके, फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेट बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज डन बाय सेंट्रल बैंक which is Reserve Bank of India in the case of India. Now see it carefully. ये जो 1.7 लाख करोड़ का पैकेज है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने रोल आउट किया था, और आरबीआई ने तो अपने मेजर्स लिए ही है, जैसे रेपो रेट कम कर रहा है, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, और अभी ऊपर भी हमने एक न्यूज़ देखी थी, वो सब इंटरवेंशन वो कर ही रहा है। नो जो 1.7 लाख करोड़ है दैट इज इक्वल टू 0.7% ऑफ इंडियन जीडीपी। एज यू नो, इंडिया का जो जीडीपी है दैट इज अराउंड $3 trillion. Now I hope you know if you convert into Indian rupees कितना आएगा। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। मैंने पहली क्लास जब भी मैं ऑफलाइन की लेता हूँ ये जरूर बच्चों को बताता हूँ कि कन्वर्ट इट, and most of the students are not able to convert it. See, it's very simple. $3 trillion की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट डॉलर, अभी हमने इसी वीडियो में देखा, $1 हैज़ बिकम इक्वल टू 76.87 मल्टीप्लाइड बाई 3 ट्रिलियन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट 3 ट्रिलियन इंटू लाख करोड़। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 215 लाख करोड़ के आसपास ये वैल्यू आएगी। अब जब उसका 0.7% निकालोगे दैट विल बी अराउंड 1.7 लाख करोड़, यहाँ से ये वैल्यू आती है। ओके, आई होप यू शुड नो दैट इंडिया की डॉलर टर्म में क्या वैल्यू आती है जीडीपी की, और लाख करोड़ में क्यों आती है, क्योंकि जो बजट होगा इंडिया का वो लाख करोड़ में होगा। आई रिपीट इन इंग्लिश, जो बजट होगा इंडिया का, द बजट ऑफ इंडिया विल बी इन Indian rupees, it will not be in dollar terms. For example, the schemes, how much rupee is going to be invested in, let's say Manrega scheme or Kisan, PM Kisan scheme, all values will be in rupees. So you should know the GDP value of India in both dollar terms as well as rupee terms. The question can come from both directly. क्वेश्चन इसमें से क्या बनता है डायरेक्टली, व्हाट इज द करंट जीडीपी ऑफ इंडिया, वेरी कॉमन क्वेश्चन है। एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, क्वेश्चन कैन बी $4 trillion, $3 trillion, $3.5 trillion, $2 trillion, you know it is $3 trillion now, or it can ask you in rupee terms what is the current GDP of India in nominal terms. Question can be around $180 trillion. Second question option 215, third option can be 250, 300, 350. Such kind of option will be there and you have to select 215. So such kind of questions are very common and they are repeated each and every year. Okay, so be careful, very important. Now the why this current affairs have came, see this is peanuts if you consider the case of India, because India has a huge population of 130 crore plus, while America has only 30 crore of population around. And America is very rich country, is quite a rich country, you know. उसकी जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 20 ट्रिलियन, इंडियन जीडीपी इज अराउंड 3 ट्रिलियन। अब उसने 20 ट्रिलियन का 10% पैकेज अनाउंस किया है, अराउंड $2 ट्रिलियन, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया की जीडीपी ही है। और इंडिया ने कितना अनाउंस किया, 0.7% ऑफ जीडीपी, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ रुपीस नहीं 130 करोड़ है, और इसकी 30 करोड़ है। और इंडिया की पॉवर्टी रेट भी काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू यूएस से। गरीबी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिया पॉवर्टी रेट इज़ क्वाइट हाई। नाउ इंडिया को तो इफ़ यू सी इट नीड्स टू अनाउंस अ मच बिगर पैकेज, but they have announced only 0.7% of GDP, the package which is very less
इस 0.7% ऑफ जीडी में भी काफ़ी कंडीशंस है इसमें, और आप जो इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टिल नाउ अब बात चल रही है सेकंड पैकेज की बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपने देखा था कि आरबीआई ने सेकंड इमरजेंसी मेजर्स निकाले थे, फर्स्ट निकाला फिर सेकंड इमरजेंसी मेजर्स टू पंप इन मोर लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। सिमिलरली फाइनेंस मिनिस्ट्री भी सेकंड पैकेज लाने की बातें चल रही है, अभी तक आया नहीं है। नाउ बातें क्या चल रही है, लेट्स सी, लेट्स सी व्हेन इट विल कम। अब उससे क्या द फिजिकल, अब वो क्या है कि वाई सेपरेट कोविड बजट क्यों चल रहा है, यस दैट इज द न्यूज़। सी अभी अब हमारे पास दो ऑप्शन है, देयर आर टू ऑप्शंस। जो करंट बजट में ही हम ये जैसे पहले वाले जो फर्स्ट हमने 1.7 लाख करोड़ किया था, इसका कोई सेपरेट कोविड बजट नहीं बनाया था हमें, कोई कोविड-19 का सेपरेट बजट नहीं बनाया था, उसी बजट के अंदर हमने ये 1.7 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। नाउ अब ये बात हो रही है कि अलग से एक सेपरेट कोविड बजट बनाएंगे, हालांकि पैसा तो उसी बजट या बोरोइंग से आएगा जहाँ से भी आएगा, पर जैसे ही कोरोना वायरस क्राइसिस खत्म हो जाएगा उस कोविड बजट को हम खत्म कर देंगे, वी विल एंड दैट बजट। अब उसी बजट को क्यों ना, जो फाइनेंशियल बजट है उसी को क्यों ना इंक्रीज कर दिया जाए, तो दैट इज द न्यूज़। उसमें कह रहे हैं कि 2008 में भी ऐसा कुछ हमने सिचुएशन आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा मनी लिक्विडिटी को पंप किया था, यही आरबीआई ने भी मेजर्स लिए थे और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी मेजर्स लिए थे, लिक्विडिटी को पंप किया था। तो उसमें जो उस वक्त 2.7% के आसपास हमारा जीडीपी होता था, आपको याद होगा कि 2007, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया, 8 was the only year that we were able to achieve the fiscal deficit target of less than 3%, which is the target set in the FRBM Act 2003। FRBM Act 2003 का टारगेट है ना, 3% से कम हमें सेंट्रल बजट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, वो सिर्फ एक ही साल अचीव हुआ था 2007-8 में। उसके बाद 2020 आ गया, आज तक वो अचीव नहीं हो पाया। नाउ सी इट केयरफुली, 2.7% ऑफ जीडीपी टू 6% हो गया था 9 में, और 2011 तक भी हम कम नहीं कर पाए थे। तो एक तरह से वो साइकिल सेट इन हो गई थी, तो गवर्नमेंट उस तरह से नहीं चाहती कि वो सिचुएशन फिर से हो, कि हम अभी जो फिजिकल डेफिसिट है, ऑलरेडी हमारा फिजिकल डेफिसिट 3.8%, दैट इज़ द रिवाइज एस्टीमेट आपको बजट में हमने किया था, ऑलरेडी काफ़ी हाई है, और 3.8 से लेस से अब जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, मान लो ये 7 to 9% तक पहुंच जाता है, तो अगर एक सेपरेट कोविड बजट बना देंगे तो उसको कम करने में, इस फिजिकल डेफिसिट को फ्यूचर में कम करने में आसानी होगी। ओके, अगर उसी बजट को इंक्रीज कर देते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। सो दैट इज व्हाट दे आर प्लानिंग, बट वी नीड द पैकेज अर्जेंटली, द सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड, यू ऑल नो हाउ यू टू इन द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 2 लाख डेथ्स के आसपास होने वाली है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू दिस कोरोना वायरस। लेट्स गो अहेड, होप दैट एवरीथिंग विल बी वेल सून। सो ये जो है, दिस इज नॉट, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये क्या है कि एटी ने एक एनालिसिस किया एक्सपर्ट्स को लेके कि क्या करना चाहिए इंडिया को ऐसी सिचुएशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं जो ग्रैंड टोटल 7.5 लाख करोड़ का पैकेज निकालना चाहिए, दैट इज विल बी अराउंड 9% ऑफ जीडीपी। आपको मैंने बताया था कि यूएस ने भी अबाउट 10% ऑफ जीडीपी का पैकेज रोल आउट किया है। दीज फाइनेंशियल द इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि इंडिया को भी तकरीबन 9% ऑफ जीडीपी का पैकेज अनाउंस करना चाहिए अर्जेंटली, और अभी कोई कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिमांड ही नहीं होएगी तो इकोनॉमी रिकवरी नहीं कर पाएगी। डिमांड कब होएगी, जब लोगों के पास पैसा होगा, और लॉकडाउन की वजह से और जो ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है उसकी वजह से डिमांड तो ऑलमोस्ट ख़त्म है इस वक्त। तो वी नीड दी स्टिमुलस अर्जेंट। सो वो कह रहे हैं कि देखो इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इंटरव्यू में आप इसको यूज़ कर सकते हो, इन पॉइंट्स को आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो। ओके, क्या कह रहा है वो, लेट्स सी हाउ मच गवर्नमेंट शुड स्पेंड। दे आर सेइंग 4 लाख करोड़ शुड गो इनटू कैपिटल स्पेंडिंग एज प्लान इन द बजट में 4 लाख करोड़ की कैपिटल स्पेंडिंग थी। कैपिटल स्पेंडिंग मतलब यू आर मेकिंग सम कैपिटल एसेट, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, रेलवे, पोर्ट्स,
ये सब चीज़ें कोई कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अब हालात ऐसे है तो आप कैपिटल स्पेंडिंग कम कर दो, क्योंकि यही कैपिटल स्पेंडिंग फ्यूचर में आपको रिटर्न्स देगी। मैंने आपको बताया था एफडीआई इज ऑलवेज प्रेफरेबल देन एफपीआई, बिकॉज एफडीआई कैपिटल असेट्स बनाते हैं और फ्यूचर के लॉन्ग टर्म में इंडिया की जीडी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। वेल एफपीआई तो कभी भी आउटफ्लो हो जाएगा मनी का, क्योंकि वो कोई कैपिटल असेट क्रिएट कर ही नहीं रहा है इंडिया में। ओके, दैट इज द मेन थिंग। उसके बाद दे आर सेइंग 1 लाख करोड़ यू शुड इन्वेस्ट इन इंफ्रा। जो ये हमने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी फेब में आई थी, आई थिंक ये 1.03 लाख करोड़ ये बजट में भी था। बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, इकोनॉमिक सर्वे में भी था, 1.03 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम करेंगे इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर दी एक्सपर्ट्स आर सेइंग 1.5 लाख करोड़ डीबीटी पुअर को दे दिया जाए। डीबीटी इज, इसकी फुल फॉर्म कभी पूछी जा सकती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपको पता भी होना चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस में डिटेल में हमने ये किया था, इतना तो पता होना चाहिए अगर आप आरपी और सेबी नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो। फिर 2 लाख करोड़ वेस्ट सपोर्ट दो एमएसएमई, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है, और हमारा एमएसएमई में अराउंड आपको पता होगा क्वाइट अ ह्यूज पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन अवर एमएसएमई, और अराउंड 35% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इज डन बाय एमएसएमई। तो वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया, और सबसे ज़्यादा अभी इम्पैक्ट इस पर ही हुआ है। 25,000 करोड़ हमें इंटरेस्ट लोन हाउसिंग के लिए लेना चाहिए। फिर यहाँ यहाँ अलग अलग जगह पे उन्होंने दिए कि इस तरह से आपको करना चाहिए इस सिचुएशन को डील करेंगे। दीज आर व्हाट एक्सपर्ट्स आर सेइंग। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का नहीं है और ना ही आरबीआई के किसी गवर्नर ने बोला है, दिस इज व्हाट एक्सपर्ट्स आर सेइंग। नॉर्मली होगा वही जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे जो एनालिस्ट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो आरबीआई गवर्नर है, और सॉरी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर है, जो डिसाइड करेगी। दिस इज जस्ट आर दी सजेशंस, सो दिस यू कैन यूज। ओके, so let's go ahead to next current affairs. Banks told not to pay dividend and conserve capital. वेरी सिंपल, प्रॉफिट अगर पैसे तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, मतलब बहुत मुश्किल है कि किसी, मतलब पब्लिक बैंक को तो बहुत ही मुश्किल है किसी पब्लिक बैंक को प्रॉफिट होगा, और अगर कोई प्राइवेट बैंक को प्रॉफिट हो रहा है तो आरबीआई गवर्नर हैज सेड प्लीज डू नॉट गिव एनी डिविडेंड। आई होप व्हाट इज यू नो व्हाट ऑल इज द डिविडेंड। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, शायद किसको ना पता हो कि डिविडेंड क्या होता है। सो लेट्स सी, एसबीआई को लेते हैं हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लेंगे, गवर्नमेंट का पीएसयू है, इट्स अ गवर्नमेंट पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, और यू कैन से पब्लिक सेक्टर बैंक, सेम थिंग। नो लेट्स से इसमें शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की 60% है, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कितनी है, 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है। और लेट्स से 2020 के अंदर इसके पास 1000 करोड़ का प्रॉफिट आ जाता है, हालांकि नहीं आएगा बट अज्यूम 1000 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। अब क्या होगा इसके बाद, 25% के आसपास कॉर्पोरेट टैक्स है। आई होप यू नो कि टैक्स जो है हमारा अब 22% हो गया, उसमें सरचार्ज सेस मिलाओगे तो 25% के आसपास आ जाता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स हमारा 25% है, तो 1000 में से 25% माइनस कर दोगे, जो एसबीआई के पास बचा वो 750 करोड़ है, 750 करोड़ ऑफ रुपीज़। ओके, नाउ अब होता क्या था, मान लो ये कोरोना वायरस या कोविड-19 नहीं होता, जो नॉर्मली जो कंपनीज है, चाहे वो पीएसबीज हो या प्राइवेट बैंक्स हो, 5 to 10% के आसपास नॉर्मली कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है टू दी शेयर होल्डर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स सी इट केयरफुली। 700, लेट्स से 10% डिविडेंड अनाउंस कर दिया एसबीआई ने 10% डिविडेंड को अनाउंस कर दिया टू दी शेयर होल्डर्स। सो 10% ऑफ 750 करोड़ कितना हुआ, 75 करोड़ रुपीज। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। सो आई हैव टू रब इट ऑफ। अब 75 करोड़ रुपीज इज द डिविडेंड अनाउंस्ड बाय एसबीआई। अब मैंने कहा था 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग है, लेस से इसमें 10% शेयर होल्डिंग एचडीएफसी बैंक की है, और मैं अंकुर बदवार, मैंने भी इसके 1% शेयर खरीद रखे हैं। हालांकि 1% से मैं काफ़ी अमीर हो रहा होगा, बस जस्ट किडिंग, 1% मेरे पास है, ठीक है। अब ये जो 75 करोड़ है जो एसबीआई ने डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि 10% ऑफ इस प्रॉफिट था, प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आता है,
उसमें से अगर आप केयरफुली देखोगे 60% ऑफ 75 crores रुपीज विल गो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10% HDFC के पास रहते हैं, 10% ऑफ 75 करोड़ विल गो टू HDFC बैंक्स। अब मेरे पास 1% शेयर थे तो 1% ऑफ 75 करोड़ आई विल अर्न। ईयरली अनाउंस होता है डिविडेंड, ध्यान रखना ईयरली अनाउंस होता है। ओके, इस हिसाब से ये तो देखोगे आप 60 + 10 + 1, दिस इज 71%। बाकी 29% जिसके पास भी होएगा उस पर इक्वली अकॉर्डिंगली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी का पैसा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय डिविडेंड। आई होप इट इज क्लियर नाउ, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती थी सर, ये पैसा तो जैसे अभी भारत पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, अगर ये कोरोना वायरस नहीं आया होता तो शायद अभी तक ये कंपनी प्राइवेटाइज हो चुकी होती। प्राइवेटाइजेशन को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डिंग होती है, जो शेयर होल्डिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो लेस देन 51% हो जाती है। जब भी किसी कंपनी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% से कम हो जाती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। वी से इट टू बी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ सी इट वेरी वेरी केयरफुली। बीपीसीएल का लेट्स से गवर्नमेंट के पास जो शेयर होल्डिंग है बीपीसीएल की, लेट्स से जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है बीपीसीएल में वो 53% है। लेट्स से द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीपीसीएल इज 1 लाख करोड़, इसी के आसपास है जहाँ तक मैं जानता हूँ, 1 लाख करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट इसमें 53% सेल करता है तो हो सकता है उसको 60 to 70 thousand करोड़ के आसपास मार्केट से वो मिल जाए। सेल करने पे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मिल जाए क्योंकि बिडिंग होगी, ओपन प्रोसेस होगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे ध्यान से देखना। जब ये इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 53% शेयर थे अभी, और सिंस यू नो बीपीसीएल इज अ प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू, लास्ट 5 years में इसने 35,000 करोड़ गवर्नमेंट को दिए थे। लास्ट 5 years में 35,000 करोड़ गवर्नमेंट गोट फ्रॉम दिस कंपनी। अब वो किससे आया था वो 35,000 करोड़ रुपीज़, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। एक तो देखो जो डिविडेंड आया उसका कंपोनेंट था, डिविडेंड जो आया उसका कंपोनेंट था। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज डिविडेंड, क्योंकि 53% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है। दूसरा जो प्रॉफिट था वो भी तो गवर्नमेंट के पास ही आएगा भाई, जो प्रॉफिट होगा वो भी तो गवर्नमेंट के पास ही आएगा, क्योंकि 53% प्रॉफिट गवर्नमेंट, सॉरी पूरा का पूरा प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास ही इसलिए आएगा क्योंकि गवर्नमेंट इसी मेजोरिटी शेयर होल्डर, गवर्नमेंट के पास पूरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। और तीसरा जो जो कंपनी जो कॉरपोरेट जो ये डायरेक्ट टैक्स पे करेगी वो भी गवर्नमेंट के पास आएगा, जो कॉरपोरेट टैक्स पे करेगी जो बीपीसीएल वो भी गवर्नमेंट के पास आएगा। तो इन तीनों को मिला के 5 years के आसपास 35,000 करोड़ गवर्नमेंट के पास आया था। तो दैट मीन्स पर ईयर 7,000 करोड़ तो वैसे ही आ रहा है बैठे बैठे, इसको बेचने की क्या ज़रूरत है। नाउ इसके प्रोस है, इसके कॉन्स है, ऑलरेडी मैं ऑफलाइन क्लासेस में डिटेल में बता चुका हूँ क्या प्रोस हो सकते हैं क्या कॉन्स हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू आस्क मी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बता नहीं पाऊंगा, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, मैं आपको अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर होएगी आई थिंक यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट easily. So let's go back to the current affairs. So that is what the news, मैंने इसके अंदर डिटेल में जाके आपको पूरा बता दिया कैसे ये वर्क करता है। क्वेश्चन इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले मैंने कहा था क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं एमसीक्यूज में। पहला, डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या है फाइनेंशियल ईयर का। अभी तो ये रिवाइज किया जाएगा क्योंकि इस कोविड-19 की वजह से
For 2020-21, the government of India has set the highest disinvestment target since independence of India. It is 2.1 lakh crore. 2.1 lakh करोड़. इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. ये भी आ सकता है कि इस साल कितना अचीव होगा, वो फिगर अभी तक आई. पिछले साल 31 मार्च तक कितना अचीव हुआ है वो फिगर अभी तक आई नहीं है. लेट्स सी व्हेन दी फिगर्स कम्स. बाकी जो बजट एस्टीमेट था इससे पहले वाले साल का 2019-20, या फिर जो रिवाइज एस्टीमेट आया था इस बजट में 2019-20 का, वो अब क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सेबी या उसका अगस्त या आरबीआई का तो अक्टूबर से पहले नहीं होगा. तो ये नहीं पूछेगा. अगर वो ये जो है ना 2.1 लाख करोड़, ये बजट एस्टीमेट ही है 2020-21 का, इसका पूछेंगे. या फिर जब इसकी एक्चुअल फिगर आ जाएगी उसका पूछ सकते हैं, बट पुराना एस्टीमेट्स नहीं पूछेंगे. आई होप दैट इज़ क्लियर. ये पहला क्वेश्चन है जो इस पे से आ सकता है. ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, आरबीआई गवर्नर शशिकांता दास है तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है. आ गया तो वो सिंपल क्वेश्चन होगा. ठीक है. और क्या आ सकता है, और देखते हैं. डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ डिविडेंड. ठीक है. फिर चौथा क्वेश्चन क्या आ सकता है, चौथा क्वेश्चन हो सकता है आपका कि भैया ये व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. इसमें ऑप्शन बना देंगे व्हेन दी गवर्नमेंट शेयर फॉल्स बिलो 51%, बिलो 60%, बिलो 25%, बिलो 100%. 5 ऑप्शन बना देंगे. पांचवा ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज. तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. पांचवा क्वेश्चन एमसीक्यू क्या आ सकता है. ऐसी पांचवा क्वेश्चन क्या बन सकता है इस करंट अफेयर्स में से. नहीं, पांचवा क्वेश्चन कुछ मुझे याद नहीं आ रहा. और कोई और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. ओके, लेट्स गो अहेड टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स. आरबी कैंसल्स लाइसेंस ऑफ मपूसा कोऑपरेटिव बैंक. Reserve Bank of India has cancelled the license of Goa-based Mapusa Urban Cooperative Bank. Now इससे पहले भी वो जो महाराष्ट्र, क्या नाम था उसका, महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक था ना, इसमें लगा दिया था. 2-3 लोग तो हार्ट अटैक से मर गए थे. सो लाइक वाइज मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में लाइसेंस कैंसिल किया है. नाउ इट इज़ गोवा बेस्ड. ये आपको रिमेंबर करना है और इसका नाम याद रखना है. दैट्स इट. यही क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आएगा. Recently, which of the cooperative bank license have been cancelled by RBI? 1, 2, 3, 4, 5. One option will be Mapusa Cooperative Bank. Okay. Now, next, it is defined under Section 5B and Section 56 of Banking Regulation Act 1949. एक तो ये पता होना चाहिए 1949 में ये एक्ट आया था. इस पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है क्योंकि 1981 का, सॉरी 1881 का वो पूछा था जो चेक के लिए होता है सेटलमेंट एक्ट, वो पूछा था 2018 आरबीआई फेज 1 एग्जाम में. डायरेक्ट क्वेश्चन था 1 मार्क्स का. सो लाइकवाइज ये 1949 पूछ सकते हैं. ओके. रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1949, 1970, 1934, 1881. इस तरह से 4-5 ऑप्शन बन सकते हैं. नाउ इट इज सेक्शन 5B एंड सेक्शन 56 के अंडर इसके पास पावर्स है. ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है. Now, this is very very important. I told you in the offline classes, और जब हमने बजट किया था ये भी मैंने 10 बार बोला था, कई बार बोला था कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही. 1. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सम बैंक्स, मान लो HDFC बैंक का वो डूब गया, तो आपके फॉर मान लो 50 लाख का डिपॉजिट आपका उस बैंक में पड़ा हुआ है, HDFC बैंक में. तो ये एज पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन गारंटी आपको 5 लाख रुपीज़ इंश्योर होते हैं कि अगर पैसा डूबा तो कम से कम 5 लाख रुपए तो आपको मिल जाएंगे. अब आपको ये चीज़ ध्यान रखने की बात है इसमें कि बजट 2020 में ही ये लिमिट को इंक्रीज़ किया गया है. पहले ये लिमिट थी 1 लाख रुपीज़. 1 लाख रुपीज़. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी लिमिट पर डायरेक्टली पूछी जा सकते हैं. व्हाट इज़ द लिमिट फॉर मोनेट इंश्योरेंस अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन? 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh. Such can be the 5 options and you should know now it is 5 lakh, not 1 lakh.
it was in budget also, and a very likely question to come in your exam, be it RBI, SEBI, NABARD, or even SBI, IBPS, LIC, AO, and all the banking and insurance exam which will be coming. Direct question will come, and very very simple question if you know it, and if you have gone through the static budget also, economic survey, and this current affairs को, ये तो करंट अफेयर्स में भी हो गया। एनीवे बजट और इकोनॉमिक सर्वे अच्छी तरह से करके जाना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके आपके नाबार्ड, सेबी और आरबीआई में, स्पेशली ईएसआई पोर्शन में लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, so let's go to next current affairs. S&P downgrades Axis and ICICI banks. now देखो अब कोविड-19 की वजह से सिर्फ ये 2 बैंक्स नहीं, 10 कंपनी या 20 कंपनीज को कोई ना कोई रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड करती रहेगी, वो आपको नहीं याद रखना। दैट थिंग यू डोंट हैव टू रिमेंबर, इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम। उसने उसको नेगेटिव से स्टेबल कर दिया, नेगेटिव से ये कर दिया, वो कर दिया, ये भी आप नहीं याद रखना। आपको क्या याद रखना है कि दिस वन, स्टैंडर्ड एंड पुअर के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। लाइकवाइज जो भी रेटिंग एजेंसी, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हो, उनके हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं। ओके, देयर हेडक्वार्टर्स यू हैव टू रिमेंबर। नाउ द हेडक्वार्टर्स of Standard and Poor is New York, USA, are the most affected city from the COVID-19. सबसे ज़्यादा इसी सिटी में क्राइसिस आया, सबसे ज़्यादा केसेस एंड डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी सिटी में है। बट ये फाइनेंशियल कैपिटल है यूएसए की, और पूरे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट फाइनेंशियल कैपिटल थी, जो अब बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। बीजिंग बेस्ड AIIB मूव्स 500 मिलियन फंडिंग। अभी कंसिडर कर रहे हैं, अभी तक अनाउंस नहीं की है, ठीक है, ये अभी तक अनाउंस नहीं की है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में अनाउंस कर दे, बट 500 मिलियन वैसे ही कुछ खास अमाउंट है नहीं। सी एशियन ये चाइना लेड बैंक है। ये हमने जब स्टेटिक बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस की थी ऑफलाइन में, डिटेल में मैंने बताया था आपको, और जब मैं इस पर स्टेटिक बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस बनाऊंगा यही यूट्यूब चैनल पे, तब भी आपको मैं कराऊंगा। अब मैंने इसमें बताया था, इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इसकी फुल फॉर्म तो पूछी जा सकती है, इनके हेडक्वार्टर्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। 2 बैंक्स है, एक बैंक है आपका AIIB, एक बैंक है आपका NDB। इसको कहते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको आल्सो बोला जाता है ब्रिक्स बैंक, क्योंकि इन 5 कंट्रीज ने मिलकर ये बैंक स्टार्ट किया था। अब इन दोनों कंट्रीज के जो हेडक्वार्टर्स है, दे आर इन चाइना। इन दोनों के ही हेडक्वार्टर्स चाइना के अंदर है, बट एक बैंक के हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है और दूसरे बैंक के हेडक्वार्टर्स शंघाई के अंदर है। वन बैंक हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग एंड अदर बैंक हेडक्वार्टर इज इन शंघाई। अगर यू विल सी इट केयरफुली, AIIB headquarters are in Beijing, while that of NDB or the BRICS bank headquarters are at Shanghai. So इन दोनों बैंक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, एंड आई सी एवरी ईयर दे आर बीइंग रिपीटेड इन RBI, SEBI एंड ऑल द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम रिपीट होते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये बैंक्स हमेशा न्यूज़ में होते हैं, नए बैंक्स है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू वर्ल्ड बैंक एंड IMF, क्योंकि वर्ल्ड बैंक IMF काफ़ी पुराने बैंक्स हो गए, सबको पता ही होता है उसका आंसर, बट मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट नो द हेडक्वार्टर्स ऑफ AIB एंड NDB, और कई बार क्या होता है वो इन दोनों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जो आपके ऑप्शंस आएंगे उसमें बीजिंग शंघाई दोनों के दोनों दे रखे होएंगे। फॉर एग्जांपल अगर NDB का आपसे हेडक्वार्टर्स पूछ लिया, देन दे विल गिव यू द ऑप्शंस, इन ऑप्शन दे विल गिव यू बीजिंग आल्सो एंड शंघाई आल्सो, एंड लेट्स से न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, एनी अदर, मनीला, फिलीपींस, कोई भी वो 5 ऑप्शंस बना देंगे, बट ये दोनों जरूर देंगे टू कंफ्यूज यू, एंड दैट्स वेयर योर द नॉलेज कम्स। और ये आप जब रिवीजन से ही आप याद रख पाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ोगे, इफ़ यू नॉट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन दीज करंट अफेयर, दीज वीडियोस विच आई एम मेकिंग फॉर यू, आपको याद ही नहीं रहेगा, और आप एग्ज़ाम के टाइम में कंफ्यूज हो जाओगे, और आप अपने एक सिटिंग सिंपल मार्क्स जो है आप यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर।
So please revise it again and again. These videos are specifically made to cover both phase 1 and phase 2. वेरी रेलेवेंट। मैं इसमें फालतू की कोई चीज़ नहीं दूंगा। मैं बहुत जल्दी क्विज भी लेके आऊँगा कि आपको पता हो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स मुझे करंट अफेयर्स भेज रहे थे ना। एक स्टूडेंट ने मुझे 20 करंट अफेयर्स भेजे अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास के। ही वाज सेइंग वन डे के है, उसने 20 to 30 करंट अफेयर्स भेजे। नाउ दे वर फुलिश करंट अफेयर्स, फुलिश। उसमें से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आते थे जिसपे आरबीआई, सेबी, नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन, इवन आरसीबीआई, पीओ, आईबीपीएस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी वो पूछेगा ही नहीं, बिकॉज दे वर जस्ट अ वेस्ट। एंड ही वॉज डूइंग मीन्स 20 करंट अफेयर्स डेली, अराउंड 20 करंट अफेयर्स डेली। उसमें से जो 80 to 90% इरेलीवेंट करंट अफेयर्स वो कर रहा था अपने एग्जाम के लिए। नो, अब ये तो एक दिन का है। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स अगर मान लो आते हैं तो 6 मंथ्स, 180 डेज। 180 डेज में वो 20 में से ऑलमोस्ट 18 करंट अफेयर्स इरेलीवेंट करा, तो 18 into 180, जस्ट इमेजिन इतने वो फालतू में करंट अफेयर्स रट्टा मारने की कोशिश कर रहा है। एंड होगा क्या? इट विल बिकम द मेजर रीजन फॉर द फेलियर। दैट्स वाई आई से कि प्लीज डोंट डू दिस ना, please don't do this. Now let me go ahead. What has happened? Just wait, just wait. Yes, so busy, so we were here. So this kind of things you need to remember. Headquarters, such kind of questions comes. Now they can ask you financing 500 million if it is cleared. Okay, but I suppose the SEBI grade exam is likely to be delayed. जुलाई 4 में नहीं होगा। सो अभी सेबी में आ सकता है, बट आरबीआई में ये नहीं आएगा क्योंकि तब तक ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो चुकी होगी। अगर सेबी अगर 4 जुलाई को होता है तो। So rest of the part, this is the end of subfolder number 1. ओके, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो अगर आपने नहीं देखा है। और ये पार्ट 2 था, और पार्ट 3 के अंदर हम बाकी के सब फोल्डर्स करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और ये अप्रैल 3rd वीक था, दिस वाज अप्रैल 3rd वीक। ओके, इससे पहले फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक की वीडियोस प्लेलिस्ट में है। फर्स्ट वीक के 3 पार्ट्स में हमने कवर किए थे पूरे फर्स्ट वीक के, और सेकंड वीक को हमने 2 पार्ट्स में कवर किया था। तो ये 3 + 2 5 वीडियोस वीकली करंट अफेयर्स की ये है। ये 3rd वीक की फर्स्ट वीडियो कल आई थी, तो 6th वीडियो थी, और ये 7th वीडियो है ये वाली। उसके बाद पार्ट 3 आएगा, वो 8th वीडियो हो जाएगी। सो मैंने बीच में 2 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में डेली करंट अफेयर्स की भी मिलेगी, बट डेली करंट अफेयर्स अभी मैंने डिसकंटिन्यू करते हैं क्योंकि मुझे बाकी ईएसआई और एसए की वीडियोस भी लेके आनी है। तो डेली वीडियोस बनाने में मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि मैनी स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग फॉर द क्विज, वो मैं जल्दी लेके आऊँगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सेकंड और थर्ड वीक। इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊँगा, और सी आपको पता चलेगी किस टाइप के क्वेश्चन आरबी ग्रेड भी करंट अफेयर्स में से पूछ रहा है। ओके, आई विल मेक इट सून दोज वीडियोस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, आल्सो कमेंट ऑन दी कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उससे मुझे आइडिया होता है कि वीडियो मैं सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा, या आपको कुछ चेंजेस चाहिए और कुछ चीज़ चाहिए। एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल अगर आपने नहीं किया यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए कि आपको इस सारे की सारी नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो आए वैसे ही मिल जाए। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द part 3 of the 3rd week of current affairs. This is Ankur Badwar saying thank you.